Hello everybody, welcome back to my channel Ad Infinitum by Ilsa Khan. If you're new to this channel, hey, I'm Ilsa Fatima. I deliver lectures on legal topics, so I would appreciate if you take a moment to subscribe my channel. Today I'll be discussing about FIR, that is First Information Report. So what is First Information Report? First Information Report is basically the first document which is prepared in the criminal proceeding. The first document here which is prepared in the criminal proceeding. After FIR, investigation process starts or criminal case comes into motion. So FIR is filed in the case of cognizable offence. What is cognizable offence? Cognizable offence क्या है? Cognizable offence is an offence which is of grievous nature. ये grievous nature का होता है in which immediate action is required. The police officer could arrest the person without warrant. So in the case of cognizable offence, FIR is filed before the police officer. And what is non-cognizable offence? Non-cognizable offence is an offence which is less grievous in nature, in which police officer could arrest with the warrant only. And in the case of non-cognizable offence, complaint is filed. Complaint is filed before the magistrate. Complaint could be filed both in the case of cognizable as well as non-cognizable offence. So now we'll be dealing with FIR. तो FIR क्या है? एक फर्स्ट डॉक्यूमेंट है क्रिमिनल प्रोसीडिंग का. ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि प्लेस करता है विक्टिम साइड ऑफ द स्टोरी. विक्टिम साइड ऑफ द स्टोरी को प्लेस करता है और इनिशिएट करता है क्रिमिनल प्रोसीडिंग को. इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होता है. FIR जो है एक टूल की तरह एक्ट होता है फॉर द पुलिस अथॉरिटीज ताकि वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करें. सो FIR प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स. FIR बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द केस ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स. सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 154 FIR कैसे लॉन्च होता है, क्या होता है? FIR टर्म हैज नॉट बीन यूज्ड इन द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, मतलब और इसको सब लोग यूज करते हैं. इसमें है कि इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू कॉग्निजेबल ऑफेंस. एनी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू कॉग्निजेबल ऑफेंस, इसमें क्या होता है? द इन्फॉर्मेंट जो है वुड गिव द इन्फॉर्मेशन ऑफ द कॉग्निजेबल ऑफेंस ओरली एंड द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन वुड reduce the information into writing, would reduce the entire information in writing, and it must be read by the informant and it shall be duly signed by the informant. एक बार जो भी इन्फॉर्मेंट बोल रहे हैं उसको ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन सब कुछ नोट डाउन करेगा, उसको एक बार पढ़ने के लिए देगा और फिर उसका साइन लेगा. साइन ऑफ द इन्फॉर्मेंट इज वेरी नेसेसरी. अगर वो नहीं साइन करता है तो उसके अगेंस्ट दूसरे चार्जेस लग जाएंगे, क्योंकि फॉल्स इन्फॉर्मेशन या फैब्रिकेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन को प्रिवेंट करने के लिए कि जो भी आपने कहा है वो सही कहा है. इट इज साइन. और फिर एक बार साइन हो गया तो ये जो होता है इसको बुक ऑफ रिकॉर्ड में एंटर कर दिया जाता है जो एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट. और जो कॉपी ऑफ द इन्फॉर्मेशन, जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट का जो कॉपी है, इट मस्ट बी गिवन टू द इन्फॉर्मेंट फ्री ऑफ कॉस्ट. फिर एनी पर्सन who is aggrieved by a refusal on the part of the officer in charge of the police station that he has refused to record your FIR, so in that case by post you could send it to the so you could send the information to the superintendent of police about the commission of the cognizable offence. That person would investigate, would authorize his subordinate to investigate about the case. यहाँ से criminal proceeding start होगी. Who can lodge an FIR? FIR कौन लॉन्च कर सकता है? Any information related to the cognizable offence could be lodged by the victim. Victim himself, victim खुद लॉन्च कर सकता है, या कोई भी आपका आई विटनेस या कोई भी हियरेंस एविडेंस जिसको भी नॉलेज है दैट अ कॉग्निजेबल ऑफेंस हैज बीन टेकन प्लेस, दैट पर्सन कुड लॉन्च एन FIR. एक केस है हल्लू एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश. इन दैट केस इट वाज हेल्ड कि according to section 154 it does not require that the report must be given by the person who has the personal knowledge about the incident. It is not necessary कि report वैसा ही इंसान दे जिसका personal knowledge है about the incident. In fact police officer can also lodge an FIR. वो भी lodge कर सकता है अगर if he has the information कि a cognizable offence has taken place. That person could also lodge an FIR. It's not necessary कि personal information हो about the incident. It's not necessary. How to lodge an FIR? टेलीफोनिक FIR भी होता है. टेलीफोनिक FIR भी होता है क्योंकि आजकल वी आर लिविंग इन अ डिजिटल वर्ल्ड. बट नॉर्मल केस में द कंप्लेनेंट हैज टू गो टू द पुलिस ऑफिसर. वहां पे पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा. उसको ओरली दैट पर्सन वुड हैव टू नरेट अबाउट द एंटायर इंसिडेंट और वो
द पुलिस ऑफिसर वुड जॉट डाउन ईच एंड एवरी पॉइंट, और इससे क्या होता है कि इससे विक्टिम साइड स्ट्रॉन्ग बनता है। आप सारी बातें बता रहे हो, सारा केस पता चलता है, इसके बेसिस पे इंफॉर्मेशन स्टार्ट होता है। और यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो भी होता है रिगार्डिंग द कॉग्निजेबल ऑफेंस, इट मस्ट बी फाइल्ड प्रॉम्प्टली, मतलब तुरंत फाइल हो जाना चाहिए विदाउट अनरीजनेबल डिले, मतलब अनरीजनेबल डिले नहीं करना चाहिए, उससे केस पे इफेक्ट पड़ता है। और जो FIR है, it is not used as an evidence according to the Indian Evidence Acts, according to section 145, ये रेब्यूटल के लिए या कॉन्ट्रडिक्शन के लिए यूज होता है क्रॉस एग्जामिनेशन इस टाइम में। और FIR कहाँ पे फाइल होता है? जहाँ पे जुरिस्डिक्शन है, जहाँ पे ऑफेंस हुआ है, where the offense has been committed, जहाँ पे jurisdiction है उस केस का। बट जीरो FIR के केस में, जीरो FIR उस केस में होता है जहाँ पे women से related offense हुआ है, तो in that case FIR could be filed at any place। यहाँ पे कोई भी jurisdiction का barrier नहीं है। if women is traveling और उसके against कोई भी offense हुआ है तो कहीं पे भी फाइल हो सकता है FIR। ये कोई restriction नहीं है कि जहाँ पे आपका jurisdiction है वहीं पे आप फाइल करोगे FIR। और विमेन के रिलेटेड अगर कोई भी ऑफेंस हुआ है तो विमेन पुलिस ऑफिसर रिकॉर्ड करेगी FIR को। आई होप FIR इज क्लियर। और टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन या टेलीफोनिक मैसेज जो होता है, क्या ये FIR है या नहीं? तो जो टेलीफोनिक कम्युनिकेशन या टेलीफोनिक कंप्लेन वम्प्लेन, ये भी एक FIR है। लाइक सपोज अभी अगर आप टेक्स्ट मैसेज के थ्रू अगर आपने भेज दिया, अगर आपने टेक्स्ट मैसेज के थ्रू कुछ भी इंफॉर्मेशन दे दिया अबाउट द हैपनिंग ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, अगर पुलिस ऑफिसर ने उसको रिड्यूस कर लिया रिटन फॉर्म में और उसको जो भी बुक ऑफ रिकॉर्ड में स्टोर कर लिया, तो इट इज ऑल्सो एन FIR। इट वुड ऑल्सो बी रिगार्डेड एज एन FIR। और देर आर सर्टेन केसेस, इसमें कुछ केसेस भी हैं कि आपका टेलीफोनिक कम्युनिकेशन जो है, टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन जो है, टेलीफोनिक मैसेज जो है वो वैलिड FIR है या नहीं। तो एक केस है आपका ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन सिद्धार्था वास्तिष्ठ केस। ये आपका केस है अलियास मानु शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली। इस केस में फोन कॉल्स मेड इमीडिएटली आफ्टर द इंसिडेंट, फोन कॉल्स विच आर मेड इमीडिएटली आफ्टर द इंसिडेंट, वो सही होते हैं। दे आर नॉट वेग, मतलब पुलिस ऑफिसर जो है, पुलिस इसको कॉन्स्टिट्यूट करते हैं एज एन FIR बिकॉज दे आर नॉट वेग। जैसे जितना आपका इंसिडेंट के तुरंत बाद अगर आपने कोई फोन कॉल दिया तो उसको FIR के तौर पे कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, क्योंकि अगर जितना जल्दी आप FIR लॉन्च करोगे, जितना प्रॉम्प्टली आप लॉन्च करोगे, इसको ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि ये वेग नहीं है, इससे मैनिपुलेशन नहीं है, आपकी मेमोरी इतनी फ्रेश है, आप सब सही बोल रहे हो। इसलिए इट इज सेड कि विदाउट अनरीजनेबल डिले FIR should be filed. I hope it's clear. If you have any queries, please comment in the comment section below. Do not forget to subscribe my channel.